نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمیں عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 94 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، ہاں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصور مار ڈالے، اس پر بلا قصد، بلا قصور نہیں، بلا قصد، جو مسلمان کسی مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانا لازم ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، یعنی میوچل ایگریمنٹ ہے، تو خون بہا لازم ہے، دیت لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمہ، بس جو غلام نہ پائے، اگر غلام میسر نہ ہو لیکن یا اس کی طاقت نہ ہو، تو پھر اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم میں سے سلام علیکہ یا السلام علیکم کرے تو تم اسے یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ہمارا جو کل کا سبق تھا، کل کے سبق میں ایک مومن کی جان، اس کی حرمت جو ہے، اس کی تاکید یا اس کی ضرورت جو ہے، اس کی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ غلطی سے بھی کسی مسلمان، کسی مومن کی جان مت لینا، اگر غلطی سے بھی کسی مومن کی جان اگر چلی گئی تمہارے ہاتھوں، تو اس صورت میں تمہیں یہ کفارہ
اور یہ دیت جو ہے وہ ادا کرنی لازم ہوگی، اور پھر مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی ایک حکمت جو ہے وہ ہمیں ان احکامات میں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا، تو گویا اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی دوزخ کو اپنے ذمہ لکھا لیا یا اپنے ذمہ ڈال دیا۔ لہذا ناحق قتل کرنا کسی بھی انسان کا، اس کی تو بہت بڑی نفی یا بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن کو بطور خاص قتل کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑی ایک اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار جو ہے وہ آیت نمبر 93 میں کیا۔ کل کے سبق کا جو پس منظر ہم نے دیکھا تھا، وہی پس منظر جو ہے وہ اگلے ہمارا جو آگے کا سبق ہے اس میں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح سے مدینہ کے ارد گرد قبائل جو ہیں وہ آباد ہیں۔ ان میں دشمن قبائل بھی ہیں، کسی کے ساتھ ایگریمنٹس بھی ہیں۔ بہت سارے ان دشمن قبائل میں یا قبیلوں میں یا دشمن جو خاندان ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس گھر بار کو یا اپنی بستی کو یا اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے اس گاؤں کو، آبادی کو چھوڑ کر حکم کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود وہ مدینہ میں ہجرت نہیں کرتے۔ ان کے لیے بطور خاص آیات آئیں گی۔ پچھلی کچھ آیات میں ہم نے دیکھا کہ منافقین کا جو تذکرہ ہوا، اس طرح کے منافق جن کو ہجرت کا لٹمس ٹیسٹ دیا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو ہجرت کرو، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، تو ان سے قتال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب یہ لوگ تمہارے سامنے آئیں بغیر کسی عذر کے، اگر انہوں نے مطلب نہیں ہجرت کی، تو وہ بہت ہی بڑے منافق ہیں، بدترین منافق ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے خلاف قتال، اور پھر ان میں سے اکثر منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کی بجائے نان مسلم جو ہے ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ یہی مسلمان جو ہیں، گو کہ وہ اگرچہ وہ منافق نہ بھی ہوں، تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پیچیدگی کا باعث بنتے ہیں جب وہ دشمن کے صفوں میں جا کر کھڑے ہیں۔ دشمن کے صفوں میں کھڑے ہیں اگر جا کر، مسلمان ہیں لیکن دشمن کی تعداد میں اضافے کا ایک ظاہری قوت کا جو مظہر ہے وہ ان مسلمانوں کی طرف سے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مسلمان جب کوئی مارکا ہوتا ہے، جب کوئی محاذ آرائی ہوتی ہے، تو وہ مسلمان جو ہے وہ ان میں موجود ہیں۔ جب تیر چلتے ہیں، جب تلواریں چلتی ہیں، تو اب وہ مسلمان دشمن کے لشکر میں موجود ہیں یا دشمن کے صفوں میں ہیں، تو وہاں پر تلواروں کی زد میں، تیر کی زد میں آتے ہیں، تو ناحق یا بغیر پہچانے ان میں سے اکثر جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے بڑی آفت کہ ہم نے ان کو پہچاننا ہے، کہیں کوئی غلطی سے کوئی مسلمان جو ہے وہ ہم سے قتل نہ ہو جائے، یہ ایک پریشانی ہے۔ پھر جب وہ جنگ اس طرح کا میٹر کوئی ہوتا ہے، تو اس میں پھر وہ کافر جو ہیں وہ ان مسلمانوں کو ڈھال کے طور پر بھی سامنے رکھے۔ کسی مسلمان کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو اس مسلمان کی وہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ حفاظت کریں گے، اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، یا اس کو دیکھ کر اپنی تلوار نیچے کر لیں گے، تو وہ ڈھال کے طور پر بھی کبھی ان مسلمانوں کو سامنے کرتے۔ یا اس طرح سے بہت ساری سچویشن جو ہے وہ ہمیں پیچیدگیاں جو ہے وہ نظر آتی، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود، اور مسلمان تو ہیں، مسلمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم واضح حکم دیا کہ تم اب دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں اپنا ہجرت کرو، ما سوائے اس کے کہ تمہارے اوپر کوئی شرعی عذر یا مجبوری ایسی ہے کہ تم مستضعفین جو ہے، مستضعفین جو آیت نمبر 75 میں دیکھا ہم نے کہ ان لوگوں میں تمہارا شمار نہ ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ لیکن وہ ہجرت نہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے پیچیدگیاں یا مسائل یا اس طرح کے معاملات میں اضافہ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہیں، یہ ایک تو پس منظر خاص یہ ہے ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے، پلس مسلمانوں کی، وہ مسلمان جو ہجرت نہیں کرتے، ان کا جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو پریشانیاں مسلمانوں کے اضافہ کرتی ہیں مسلمان قوم کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے، ان کا بھی ہمیں پس منظر میں رکھنا ہے جب ہم آگے آیات میں دیکھیں گے تو اس کو سمجھنے کے ضمن میں۔
تو शुरू करते हैं हमारा आज का सबक आयत नंबर 95 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला यस्तविल काइदूना, नहीं बराबर सब बैठने वाले, मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से, मोमिनों से में से वो लोग जो बैठे रहते हैं, वो बराबर नहीं हो सकते। अब कैसे बैठे रहते हैं? ये अब जिहाद के बारे में यहाँ पर तज़किरा है इस आयत में, आयत नंबर 95 और 96 में। जिहाद के बारे में अगर हम इस आयत के कंटेक्स्ट में एक बुनियादी बात जो है वो हम अगर अपने सामने रखें, तो जिहाद जो है, एक तो जिहाद की बहुत सारी किस्में हैं, जिहाद अकबर, जिहाद असगर, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना और ये तो सब एक अलग से मौजू है। लेकिन यहाँ पर जो जिहाद जिसका तज़किरा है इस इन दो आयात में, वो है अल्लाह के रास्ते में किताल के लिए निकलना है। और अल्लाह के रास्ते में किताल के लिए निकलना जो है, या अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जो कोशिश करना है, उसकी भी बहुत सारी शक्लें या बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग जो हैं वो मैदान जंग में जाकर हिस्सा लेते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं, दुश्मन का सामना करते हैं, अपने सीने जो हैं वो पेश करते हैं, मतलब अल्लाह के हजूर कि हमारे सीने हाजिर हैं तेरे दीन के गलबे के लिए या उसकी हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको बैकिंग सपोर्ट करते हैं, जो उनके लिए वसाइल मुहैया करते हैं, जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं, जो अगली सफ़ों में नहीं है लेकिन दरमियान की सफ़ों में मौजूद है, पीछे एक जो पूरी एक लॉजिस्टिक चेन जो है उसमें हिस्सा डालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माली मुआवनत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो गोया कि अल्लाह के रास्ते में जो प्रैक्टिकली जी मतलब आप दीन के गलबे के लिए निकलना, उसमें भी बहुत सारी हमें कैटेगरीज जो हैं या बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो नज़र आते हैं, जिस अंदाज से हम शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं उस किताल फी सबीलिल्लाह में या जिहाद फी सबीलिल्लाह में। अब इसी के बीचों बीच एक अहम नुक्ता ये भी है कि जब किताल या इस तरह के जिहाद की मतलब कैफियत होती है, तो उसमें एक कैफियत कभी ये हो सकती है कि वो एक बड़ा मार्का या एक बड़ा मकसद या एक बड़ी जंग जो है उसकी तैयारी है या उसकी ज़रूरत है। उस ज़रूरत के पेश नज़र जो भी उस वक़्त का अमीर या हुक्मरान या लीडर या जो भी साहिब इक़्तिदार है, वो एक हुक्म सादर करता है, एक नफ़ीर आम करता है कि अब ये मामलात हैं, ये वजूहात हैं, ये मुसलमानों को या अल्लाह अल्लाह के दीन के रास्ते में ये रोड़े हैं, उन रोड़ों को दूर करने के लिए हम सबको जिहाद या किताल के लिए निकलना है। तो ऐसी सूरत में जबकि अमीर या एक हुक्मरान जो है वो ऐलान आम करे जिहाद का और सबके लिए कहे कि तुम जिहाद में शामिल हो जाओ, वो अब किस किस को किस कौन कौन सी पोजीशन देता है वो एक अलग बात है। कि किसी को अगले मोर्चों में भेजना है, किसी को लॉजिस्टिक में लगाना है, किसी को दूसरे मामलात में, लेकिन सबको अपने मामलात को पसे पुश डालते हुए अल्लाह के रास्ते में अपने रोज़ाना के मामूल से हटकर ये काम के लिए निकलना ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता अगर नॉर्मल हालात हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इस तरह की अ, बड़े मार्का नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर ऐलान आम ये भी हो सकता है कि हाँ, अब जिसके पास ताकत है या जो कोशिश कर सकता है या जो वक्त निकाल सकता है वो वक्त निकाले। ऑप्शनल जो एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर तुम मजबूर हो या अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है या दीगर मामलात हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम निकल सकते हो तो अल्लाह के रास्ते में निकलो। नॉर्मल हालात में जब सरहदों की हिफाजत करनी होती है, अपने कुछ दीगर जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें चलते हुए, तो ऐसी सूरत में सारे मुसलमानों का निकलना वो फ़र्ज नहीं होता, वो ज़रूरी नहीं होता। ऐसी सूरत में मुसलमानों की एक तादाद जो है वो निकल कर मैदान जंग में या अगली चौकियों पर जाकर पहरा वगैरह देना जो है वो जिम्मेदारी अंजाम देते हैं, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो अपनी रोज़ाना के मामूलात में वो लगे रहते हैं। तो ऐसी सूरत, ऐसी कंडीशन में कोई लाज़िम व मलजूम नहीं, फ़र्ज नहीं है कि सब के सब जो है वो जिहाद पर निकले। तो अब ये कैफियत जो है इसका यहाँ पर तज़किरा है कि एक ऐसी सूरत जिसमें तुम्हारे पास ऑप्शनल है कि तुम जिहाद पर जाना चाहो, किताल के लिए निकलना चाहो तो तुम निकल सकते हो, ना निकलना चाहो कि चाहे किसी मजबूरी की वजह से, चाहे बगैर मजबूरी के, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो तुम घरों में बैठे रहो या अपने मामलात में नॉर्मल रहो। तो लेकिन
ये जो बैठने वाले हैं, ये जिन्होंने ऑप्शन जो है ऑप्शनल कंडीशन में जंग की तरफ जाने के बजाय पीछे रहना जो है उसको चूज किया, वो लोग, और वो लोग जो जंग पर प्रैक्टिकली जिन्होंने जाकर जंग में हिस्सा लिया, ये दो तरह के लोग जो हैं, ये अल्लाह ताला के फजल व करम में अल्लाह ताला की तरफ से जो दर्जात हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो उसका रिटर्न है उसमें बराबर नहीं हो सकते। और ये मुजाहिद जो हैं जो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, यकीनन उनके दर्जात और उनके ऊपर अल्लाह ताला का फजल व करम और रहमत और मगफरत है, वो दूसरे लोगों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। तो ये दर हकीकत असल टॉपिक है इन दो आयात का, कि वो लोग ला यस्तविल काइदूना, नहीं तुम में से बराबर बैठने वाले, मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से, गैर गैर उली जरर, बगैर किसी तकलीफ के, हाँ वो मोमिन जो बगैर किसी उज़र के बैठे रहें, बगैर किसी उज़र के बैठे रहें। अब इस आयत या आयत के इस पहले हिस्से के बारे में हमें सही मुस्लिम और सही बुखारी से एक रिवायत मिलती है। हजरत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, या आयत का पहला हिस्सा नाजिल हुआ कि ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना, यहाँ तक, ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना, नहीं बराबर सब बैठे बैठे रहने वाले मोमिनों में से। जब आयत का ये हिस्सा नाजिल हुआ, या आयत का ये मतलब जो है वो वाज़ेह हो गया कि मोमिनों में से जो बैठे रहते हैं वो जिहाद में हिस्सा लेने वाले के बराबर नहीं हो सकते। बहरहाल जब आयत का ये हिस्सा नाज़िल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन साबित को बुलाया और उनसे ये आयत लिखवाई। इतने में हज़रत इब्ने उम्मे मख्तूम जो है वो भी आपके पास आए। हज़रत इब्ने उम्मे मख्तूम जो है वो नबीना सहाबी थे, और शुरू के अवलीन सहाबियों में से सहाबी। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम अगर मुझे इस्तिताअत होती तो मैं ज़रूर जिहाद करता। और वो नाबीना थे, चनांचे उसी वक़्त अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की, और आगे जो इजाफी सॉरी अगले अल्फाज जो हैं वो इस आयत का हिस्सा बना दिए, एक स्पेशल वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने, गैर उलिल ज़रर, कि बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी शरई उज़र के जो बैठे रहने वाले मोमिन हैं, ये वो एक्सक्लूड हैं। नॉर्मल हालात में जिनके पास वसाइल भी हैं, जिनके पास सेहत भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, वो वाले मोमिन जो हैं वो वो एक्सक्लूड नहीं है इस आयत में से। तो ये हजरत इब्ने उम्म मक्तूम जो है उनके बारे में हमें पता है कि नाबीना होने के बावजूद, और जब ये हदीस हमारे सामने आती है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये हजरत इब्ने उम्म मक्तूम और इस तरह के दीगर जो सहाबा कराम थे, जो कि शरई मजबूरियां रखते थे, अपने जिस्मानी जो माजूरियां हैं उनकी वजह से, कोई जैसे कि ये नाबीना थे, या कुछ जो अगर किसी माजूरी का शिकार हैं, या दीगर बहुत सारे मसाइल की वजह से, लेकिन उसके बावजूद हज़रत इब्ने उम्मे मख्तूम जो हैं उन्होंने बहुत सारे गज़वात में, बहुत सारी जंगों में हिस्सा भी लिया, और प्रैक्टिकली हिस्सा लिया नाबीना होने के बावजूद। क्योंकि प्रैक्टिकली जिहाद में हिस्सा लेने की फजीलत ही इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने तज़किरा की, कि उस वक़्त के सहाबा जो हैं वो पीछे रहना जो है वो उनके लिए नागवार था, कि हम कैसे पीछे रहें जब अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया है, बेशक ऑप्शनल बुलाया है, लेकिन वो उसमें ज़रूर हिस्सा लेते थे। बहरहाल ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से वो लोग, गैर उलिल ज़रर, उन लोगों को छोड़कर जिनके बारे में कोई शरई उज़र है, शरई मजबूरी है, या शरई तौर पर कोई माजूरी है, उनको छोड़कर दूसरे मुसलमान जो है वो बराबर नहीं हो सकते। किसके? वल मुजाहिदूना, उन मुजाहिदों के, उन जिहाद करने वालों को, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों और अपनी जानों के साथ। उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जो अपनी जानों और अपनी मालों के साथ अल्लाह के रास्ते में किताल फी सबीलिल्लाह के लिए निकलते हैं। ना सिर्फ उन्होंने अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, बल्कि अपनी जानों को, अपने सीनों को भी अल्लाह के रास्ते में पेश किया। तो ये मुजाहिद जो हैं, ये मुजाहिद और दूसरे आम मुसलमान जो कि अपने घरों में रहे, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब जो मुजाहिदीन जो हैं, चाहे वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, चाहे वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए वापस गाजी बनकर वापस लौटें, दोनों ही सूरतों में उनके लिए बहुत बड़े अजर और बहुत बड़ा जो एक फजीलत है वो अल्लाह ताला ने तय कर रखी है।
जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ये गालिबन तबू के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में रहने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तुम में से जिस कदर भी सफ़र किया, तुमने जिस कदर भी सफ़र किया और जितनी वादियां भी तय की, वो तुम्हारे साथ थे। सहाबा कराम ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मदीना में है, वो तो हमारे साथ मौजूद ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अगरचे वो मदीना में है, लेकिन उन्हें किसी उज़र ने जिहाद में शिरकत से रोके रखा। तो वो मदीना में होने के बावजूद वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक का सफ़र नहीं कर सके अपनी शरई उज़र की वजह से, उनके लिए यहाँ पर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे हर सफ़र में, तुम्हारी हर तकलीफ में, तुम्हारी हर मुशक्क़त में, तुम्हारी हर जो मुश्किल अमर है उसमें तुम्हारे साथ हैं और बराबर के हकदार हैं, क्योंकि वो जंग में ज़रूर शामिल होते अगर उनका एक शरई उज़र ना होता। तो बहरहाल वो मुजाहिद जो हैं, जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, वो दूसरे लोगों के, मुसलमानों के बराबर नहीं हो सकते। फजल्लाहु, फजीलत दी है अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन, ऐसे मुजाहिदों को, जिहाद करने वालों को, बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, जो अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद में प्रैक्टिकली जाकर हिस्सा लेते हैं, अलल काइदीन, उन दूसरे मुसलमान जो बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर, दराजतन, एक दर्जा फजीलत अता की है अल्लाह ताला ने इन मुजाहिदीन को। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, और हर एक से अल्लाह ताला ने अच्छाई का वादा किया है। ये बात भी एक अपनी जगह पर कायम है कि अल्लाह ने हर एक के लिए अच्छाई का वादा किया है। यानी कोई ये ना समझे कि अगर किसी ने जिहाद में हिस्सा नहीं लिया तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे मल्टीप्लाई हो गया, नहीं। वो जो भी, जिस तरह से भी वो अमल कर रहा है, जिस तरह से भी वो कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिकली जिहाद के लिए नहीं निकला, लेकिन किसी दूसरे मैटर में वो मुसलमानों की मदद कर रहा है या दूसरे नेकी के काम कर रहा है, जिहाद के अलावा दीगर दीगर बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है, अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है, तो वो भी अल्लाह की तरफ से तो जो अच्छाई का वादा है उसके मुस्तहिक हैं। मुस्तहिक दोनों सूरत में दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन मुजाहिदीन जो हैं वो, उनको अल्लाह ताला ने एक दर्जा फजीलत या एक दर्जा अफजलियत जो है वो आम मुसलमानों के ऊपर दी है। वफ़ज़्ज़लल्लाहु फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा, और फजीलत दी अल्लाह ताला ने सब जिहाद करने वालों को, सब बैठे रहने पर, अजीम अजर की सूरत में, अल्लाह ताला के अजर अजीम की सूरत में उन मुजाहिदों को बड़ी फजीलत दी अल्लाह ताला ने दूसरे मुसलमानों की निस्बत। और ये फजीलतें जो हैं ये बहुत तरह की हो सकती हैं। अगली आयत के अगले हिस्से में अगर हम देखते हैं, अगली आयत में ये फजीलतें जो हैं वो और क्या अल्लाह ताला ने इनाम किए मुजाहिदीन पर। दराजात मिन्हु, दर्जात हैं अल्लाह की तरफ से, अपनी तरफ से उनके दर्जात हैं, बड़े दर्जात हैं उन मुजाहिदों के। व मगफिरतम व रहमा, और उनके लिए बतौर ख़ास एक बख्शिश और रहमत अल्लाह ताला ने रखी है, जो कि दूसरे जो आम मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा है। वकान अल्लाह गफ़ूर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अजर में भी, दर्जात में भी और मगफरत और रहमत में भी उनको अल्लाह ताला ने बरतरी अता की है, एक फजीलत दी है दूसरे आम मुसलमानों पर। बुखारी की एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की मिसाल मिसाल ऐसे है जैसे रोज़ेदार और नमाज कायम करने वाले की। और अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वाले के लिए इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि अगर उसे मौत देगा तो जन्नत में दाखिल करेगा, या फिर उसे सही सलाम सालम अजर और माल गनीमत के साथ लौटाएगा। जिसने भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया उसके लिए अल्लाह ताला ने अजर लिख दिया, ये तय कर दिया, या तो उसे शहीद करके जन्नत के आला दर्जात जो है वो अता फरमाएगा, या उसे गाजी बनाकर गलबा अता करके माल गनीमत के साथ वापस लौटा देगा। इसी तरह से एक और रिवायत जो है, एक रिवायत इससे पहले भी हमने देखी थी बुखारी की, कि जिसके कदम जो है वो अल्लाह के रास्ते में गर्द आलूद हो गए, उसको तो जहन्नम की आग जो है वो नहीं छुएगी। इसके अलावा एक और हदीस जो बुखारी और मुस्लिम से हम देखते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे, तो अल्लाह पर हक है कि उसे जन्नत में दाखिल करे।
ये आम मुसलमान जो है, आयत ये इस हदीस का पहला हिस्सा जो है वो आम मुसलमानों के कुछ खसूसियात जो हैं उनका तज़किरा करते हैं। कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम करे, रमज़ान के रोज़े रखे, तो अल्लाह पर हक है कि उसे जन्नत में दाखिल करे, ख्वाह वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे या अपनी ज़मीन पर जहाँ पर वो पैदा हुआ बैठा रहे। चाहे वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, चाहे वो बैठा रहे, ये अजर जो है अल्लाह ताला ने लिख दिया जो ईमान लाने वाले, नमाज कायम करने वाले, रोज़ा रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए। लोगों ने, जैसे सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोगों को ये खुशखबरी ना सुना दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं। अब यहाँ पर पहले हिस्से में तो हदीस के है कि आम मुसलमान जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उन पर अल्लाह ताला का हक है। अब उसको जब खुशखबरी फैलाने का जिक्र किया सहाबा कराम ने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें ऐड कर दिया अल्फाज, वो क्या? जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार की हैं। हर दो दर्जों के दरमियान इतनी मुसाफत है जितनी आसमान और ज़मीन के दरमियान है। यानी आम मुसलमान जो हैं, ठीक है, बड़े अजर के मुस्तहिक हैं, बड़े बड़े नेक काम करते हैं, बड़े बड़े अच्छाई के काम करते हैं, लेकिन जिहाद में जो शामिल होते हैं लोग, उनके तो दर्जात 100 दर्जात हैं, और हर दो दर्जों के दरमियान ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है उतना ज़्यादा फासला है। इतने बड़े बड़े इतने वसी और इस दर्जे हैं, और ऐसे 100 दर्जे उनके लिए हैं जो जिहाद में प्रैक्टिकली हिस्सा लेते हैं। और ये दर्जे जो हैं उनसे फजीलत या एतबार के एतबार से ऊपर हैं, जो कि आम हालात में मुसलमान जो हैं आम तौर पर घरों में बैठे अल्लाह के लिए नेक अमाल या ईमान के साथ साथ नेकी के काम करते हैं। तो बहरहाल ये दो आयात जो हैं वो जिहाद की अहमियत और जिहाद के फ़ज़ाइल और मुजाहिदीन जो हैं, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर निकले हुए हैं, उनको उनके दर्जात जो हैं उनकी तरफ हमें इशारा करती है। हम आजकल के हालात में अगर हम देखें तो बहुत सारे तरीक़ों से हम उन मुजाहिदीन के लिए मदद कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकते हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर निकले हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद अल्लाह ताला जो है वो भी हमारे इस अमल को कबूल करे और जिहाद का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे नसीब में भी इस तरह से लिखे। तो जहाँ पर मुमकिन हो हमारे लिए जिहाद पर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अमल करना जो है, जो हमारी इस्तात में हो उसमें उसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। और अल्लाह ताला से उम्मीद जो है वो भी ज़रूर रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस जिहाद में शामिल लोगों के बराबर या उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो हमें ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह, आमीन। हाँ, ये आजकल जो मामलात चल रहे हैं गज़ा के सिलसिले में या दीगर और भी बहुत सारे मामलात हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत अहम है ऐसी चीज़ों को सामने रखना कि हमें अपने दीगर मामलात के साथ साथ गज़ा के जो मुसलमान हैं उनकी मदद जो है वो भी करनी चाहिए। बहुत सारी एक्सक्लूजन जो है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आजकल के हालात के मुताबिक बहुत सारे मामलात जो हैं वो क्रिटिकल हैं। तो लिहाजा हमें उन मुजाहिदीन का साथ जो है वो ज़रूर देना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, जिस जिस तरह से भी हम उसमें शमूलियत जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगली आयत जो है 97, इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकत, बेशक वो लोग जो फौत करते हैं उनको फरिश्ते। अब यहाँ से आगे जो है 3 4 आयत हैं, छोटा सा रुकू है, लेकिन उसको कोशिश करेंगे आज के सबक में हम कवर अप कर लें। जो वही मुसलमानों के बारे में है जिनके बारे में आज तमहीद के तौर पर तज़किरा हुआ, कि जो दारुल कुफर में ही जिन्होंने अपना ठिकाना या बसेरा कर रखा है, और हुक्म के बावजूद उन्होंने मदीने में हिजरत नहीं की, और जिसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियां और बहुत सारी ऐसी जो मसाइल जो हैं मुसलमानों को वो दरपेश हैं। और दरअसल ऐसे मुसलमानों की वजह से अक्सर झड़पें या मारपीट जो होते हैं वो होते हैं। और ये जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ज़ाहरी कुव्वत के साथ साथ उनकी जो मुआशी कुव्वत जो है उसका भी हिस्सा बनते हैं। उनके उनके अंदर रहते हैं, उनमें कारोबार करते हैं, उनमें लेन देन होता है, तो मईशत में भी, उनके काफिरों की मईशत में भी, उनकी मजबूती के लिए भी ये जो है वो हिस्सादार बनते हैं। तो लिहाजा बहुत सारे एंगल्स जो हैं उनको अगर हम टटोलें, देखें, एनालाइज करें, तो हमें इन वो लोग जो उज़र होने के बगैर, बगैर किसी उज़र के अपने आप को दारुल इस्लाम में ट्रांसफ़र नहीं करते, वो लोग जो हैं वो, उनके बारे में ये आयात जो हैं वो आगे आ रही हैं। इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, तो ऐसे लोगों की जब फौत होते हैं, जब उनको फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं, उनको जब डिस्कनेक्ट होते हैं वो दुनिया की ज़िंदगी से, ज़ालिमी, तो फरिश्ते कहते हैं उनको ज़ालिमी, इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले हैं, अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर। यानी वो लोग जो हैं वो अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले थे जब ऐसे लोगों की
रूह कब्ज करते हैं फरिश्ते, तो कालू, वो फरिश्ते कहते हैं, फीमा कुंतुम, किस हाल में तुम थे, यानी तुम्हें क्या था कि तुमने हिजरत नहीं की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म होने के बावजूद तुमने हिजरत नहीं की। तो जब फरिश्ते जो हैं उनकी जान कब्ज करने के वक्त उनसे ये सवाल करते हैं, तो वो क्या बहाना लगाते हैं वो लोग। कालू, तो वो सब कहते हैं, कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फिल अर्ज़ी, तो हम सब तो कमजोर और बेबस थे जमीन सरजमीन में, हम तो जमीन में, इस सरजमीन में बेबस और कमजोर थे, मुस्तज़अफ़ीन। ये वही है जो लफ्ज़ जो आयत नंबर 75 में इससे पहले गुजरा है, कि उस वक्त जो हमने तज़किरा किया था वो मक्का में जो मुस्तज़अफ़ीन थे, जो कमज़ोर थे, बेबस थे, जो हिजरत नहीं कर सके, उसके पस मंज़र में था। लेकिन यहाँ पर मक्का के अलावा बाकी जो दीगर कबाइल में आबाद हैं, वो सारे के सारे इस आयत में जो एक्सक्लूडेड होंगे वो उसमें शामिल हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं, उन्होंने क्या बहाना किया कि हम तो कमज़ोर और बेबस थे इस सरजमीन में, यानी हमारी कोई बस नहीं चलता था, हमारी ये मजबूरियां थी, हमारा ये था वो था, बहाने किए। कालू, तो इस पर वो फरिश्ते कहते हैं, अलम तकुन अर्जुल्लाहि वासिया, क्या नहीं थी अल्लाह की ज़मीन वसी, फतुजा फतुहाजिरू फीहा, कि पस तुम हिजरत कर जाते उसमें। क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं पाते थे तुम, कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। अल्लाह की वसी ज़मीन से मुराद एक तो ये है कि बहुत सारे मामलात में हम आसानी से हिजरत कर सकते हैं। जैसा कि उस वक्त जो है एक एक दारुल अमन जो है मदीना को करार दे दिया गया, और वहाँ पर मुसलमानों को हिजरत करके आने की दावत दी गई कि यहाँ आओ, मुसलमानों का साथ दो, मुसलमानों की अफरादी कुव्वत और दीगर मामलात में मुसलमानों को मजबूत करो। तो तुम्हारे लिए तो ज़मीन खुली छोड़ दी अल्लाह ताला ने, तुम्हारे लिए तो ऐलान आम भी किया कि आओ इस ज़मीन पर हिजरत करके आओ, लेकिन तुमने हिजरत नहीं की। आजकल के हालात में अगर हम देखें तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो ट्रांसफ़र होना, वो थोड़ा सा एक मुश्किल अमर है। हाँ, एक मुल्क में ही रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना वो ऐन मुमकिन है। तो ऐसी बहुत सारी सूरतें जो हैं वो मुख्तलिफ हालात में हमारे सामने आ सकती हैं। बहरहाल उन्होंने बहाना किया था हम कमज़ोर थे, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ने तो वसी ज़मीन तुम्हारे लिए छोड़ी थी, और तुम्हारे लिए ऑप्शन थी कि तुम हिजरत कर जाते, तो तुम हिजरत क्यों नहीं कर गए। फ़उलाइका मा अवाहुम जहन्नम, तो इसमें उस फ़उलाइका मा अवाहुम जहन्नम, तो यही लोग हैं उनका ठिकाना जहन्नम है। तो ऐसे लोग जो हीने बहाने करते रहे दुनिया की ज़िंदगी में, उन्होंने ज़्यादा कान नहीं धरे हिजरत करने के लिए, मुहाजिर बनने के लिए, तो ऐसे लोगों का ठिकाना तो है जहन्नम है। वसात मसीरा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐसे लोगों की सज़ा जो है वो भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुख्तस कर दी। अब यहाँ पर दारुल कुफर में रहने वाले, अगर वो अपने ईमान को बचाने के लिए मजबूर हैं और हिजरत नहीं करते ऑप्शन होने के बावजूद, तो उनको अपने मामलात में नज़र षानी करने की ज़रूरत जो है वो ज़रूर है। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाली, अब इनमें एक्सक्लूजन क्या है, ये अल्लाह ताला ने जो जहन्नम के ठिकाने की जो एक वईद या एक वार्निंग दी है, उन उनमें से कौन से लोग हैं जो कि एक्सक्लूड होंगे। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाली, वो लोग जो कि वाकई किसी शरई मजबूरी की वजह से हिजरत नहीं कर सके, जिसमें कोई माजूर हो सकते हैं, जिसमें वसाइल की कमी का शिकार हो सकते हैं, दीगर बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, चाहे वो मर्दों में से हो वन निसाई, चाहे औरतों में से वल विलदानी, और बच्चियों में से, ला यस्ततीऊन हीलतन, नहीं वो ताकत रखते किसी तदबीर की, वला यहतदून सबीला, और ना वो सब हिदायत पाते हैं किसी रास्ते की। यानी उनको वसाइल की कमी है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी वाकई शरई मजबूरियां हैं, तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए फिर अल्लाह ताला ने एक्सक्लूजन कर दी कि इनके साथ अल्लाह ताला आसानी वाला मामला कराएगा। फ़उलाइका, और ऐसे लोग ही हैं, फ़उलाइका असल्लाहि, तो यही वो लोग हैं, करीब है कि अल्लाह ताला अन यअफुआ अनहुम, कि माफ़ कर दे उनको। करीब है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसे शरई हकीकी उज़र रखने वाले जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा। वकान अल्लाह गफ़ूर रहीमा, और है अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ़ करने वाला। यकीनन अल्लाह ताला बहुत ही बड़ा दरगुजर करने वाला और माफ़ करने वाला है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि, और जो हिजरत कर लेगा अल्लाह के रास्ते में, यजिद फिल अर्जी मुरागमन कसीरम वसा, और वो पाएगा जमीन में ठिकाने, मुरागमन ठिकाने, कसीरन बहुत सारे, वसा और कुशादगी। जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर जाए वो यकीनन बहुत खुली वसी जमीन भी पाएगा,
रहने के ठिकाने भी पाएगा और कुशादगी भी पाएगा, उसमें आसानियां भी पाएगा जो हिजरत करेगा। लेकिन ये हिजरत जो है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में है। अब हम अगर तरतीब के एतबार से देखें तो पहले अल्लाह के रास्ते में निकलना जो है वो जिहाद के लिए जिक्र हुआ, मुजाहिदीन के लिए। अब ये अल्लाह के रास्ते में निकलना जो है वो मुहाजिरों के लिए तज़किरा हो रहा है, जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करते हैं। अब ये हिजरत करना, जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत, दर हकीकत वही हिजरत है। अपने दुनियावी मसाइल या दुनियावी फायदा जो है उसके रास्ते में हिजरत करना जो है वो हिजरत नहीं होगा। वो अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए कोई मामलात तो हो सकते हैं, जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आप जो आजकल अपने रोज़ी के लिए या अपनी जॉब वगैरह के लिए, कारोबार वगैरह के लिए जो हो जाते हैं, वो इमिग्रेशन तो हो सकती है, वो नकल मकानी तो हो सकती है, वो हिजरत नहीं हो सकती। हिजरत वो है जो अल्लाह के रास्ते में, या तो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए की जाए या अपने ईमान को बचाने के लिए की जाए, कि मेरा ईमान महफूज हो जाए। किसी जगह पर दारुल कुफर में ऐसी मजबूरियां हैं, ऐसे वहाँ पर हालात हैं कि वहाँ पर अपने ईमान को बचाना, अपने ईमान पर अमल करना, प्रैक्टिकली अपने ईमान को साबित करना वो मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में हिजरत करना जो है उसकी बड़ी फजीलत है, जिसका यहाँ पर तज़किरा हुआ। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तमाम अमाल का इन्हिसार नियतों पर है, और शख्स के लिए सिर्फ वही है, हर शख्स के लिए वही है जो वो नियत करेगा। जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए है। और जिसकी नीयत दुनिया के हसूल या किसी औरत से शादी करने के लिए हो, तो उसकी हिजरत उसी तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। तो जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में हिजरत करेगा, दर हकीकत वो मुहाजिर है, जिसकी यहाँ पर अल्लाह ताला हमें मतलब जिसके लिए फजलो करम या जिसके लिए यहाँ पर आसानी की बात कर रहा है। वगरना वो अल्लाह ताला तो रिस्क देगा दूसरे लोगों को भी, लेकिन वो हिजरत जो है वो हिजरत नहीं होगी, वो इमिग्रेशन या नकल मकानी इस तरह से हो सकती है, सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन हिजरत नहीं हो सकती। हजरत सबरा बिन अल्फाका रजी अल्लाह अन्हो से एक रिवायत है जो कि निसाई में भी है और मसनद अहमद में भी है। ये रिवायत एक अहम है यहाँ पर तज़किरा करना, कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया, शैतान इंसान के रास्ते में आकर बैठता है। ये एक तरतीब के साथ अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया, इसमें तरतीब बड़ी खूबसूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के इस्लाम के रास्ते में आकर बैठ जाता है और यूं वर्गलाता है कि तुम अपने और अपने आबाओ अजदाद के दीन से क्यों फिर रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो तुम उसे। मगर इंसान जो है उस शैतान की एक नहीं सुनता और इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर शैतान अगले लेवल में उसकी हिजरत के रास्ते में आ बैठता है और यूं वर्गलाता है कि तुम अपने घर, अपने वतन और अपने जमीन और आसमान को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। इंसान यहाँ भी उस शैतान को ठोकर मारता है और बिलाखिर जिहाद के रास्ते पर आ जाता है, हिजरत करता है और जिहाद ठोकर मार देता है। फिर बिलाखिर शैतान जो है वो जिहाद के रास्ते पर आकर बैठ जाता है और उसे यूं वर्गलाता है कि तुम जिहाद पर जा रहे हो, ये तो तुम्हारी जान और माल को तलफ कर देगी, तुम कत्ल कर दिए जाओगे, तुम्हारी बीवी से कोई दूसरा निकाह कर लेगा, तुम्हारा माल लूट लिया जाएगा। तो ये मुजाहिद जहां पर भी शैतान की उस आफर को या शैतान के उस वर्गलाने को ठोकर मार देता है और मैदान जिहाद की तरफ रवाना हो जाता है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना अजीम शान किरदार पेश करने वाले को अल्लाह ताला ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमा देता है, ख्वाह वो शहीद हो या पानी में डूब कर मर जाए या आग में जल जाए या उसे दरिंदे खा जाए, तो भी अल्लाह ताला उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो ये एक एक तरतीब के साथ, तसलसल के साथ है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में मुसलसल जिहाद करते रहे, अल्लाह के रास्ते में मुसलसल निकलते रहे। ईमान के मैटर में भी उन्होंने हिजरत की। हिजरत की एक डेफिनेशन हमने कल भी देखी थी या गालबन परसों, कि हिजरत की एक डेफिनेशन तो है ज़ाहरी तौर पर एक जगह मुकाम से दूसरे मुकाम पर शिफ्ट होना। हिजरत की एक दूसरी डेफिनेशन वो भी है कि रूहानी तौर पर अपने आप को ट्रांसफर करना, अपने आप को हिजरत करना, अपने रूहानियत की मतलब अल्लाह की तरफ हिजरत करना। तो बहरहाल जिसने रूहानी तौर पर भी हिजरत की
और फिर प्रैक्टिकली भी जिसने हिजरत की और फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी करता रहा, हमेशा वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की अपनी हिफाजत के लिए और अल्लाह के दीन के गलबे के लिए वो कोशिश करता रहा, तो चाहे वो मैदान जंग में शहीद हो, चाहे वो पानी में डूब कर मर जाए, चाहे वो आग में जल जाए या उसे दरिंदे खा जाएं, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की बशारत जो है वो ज़रूर देता है इस हदीस के मुताबिक। इसी तरह से एक और रिवायत जो है वो यहाँ पर काबिल ज़िक्र है, जो कि सही मुस्लिम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने यहाँ किन लोगों को शहीद फरमाते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से, सहाबा कराम से पूछा कि तुम अपने यहाँ किन लोगों को शहीद करार दे शुमार करते हो? तो सहाबा कराम ने अर्ज की, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए वो शहीद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो मेरी उम्मत में शहीदों की तादाद बहुत कम होगी। तो इस पर सहाबा कराम ने पूछा रिजवानुल्लाहि अजमाइन कि तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए कि कौन कौन से लोग शहीद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए वो शहीद है, जो अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह के रास्ते में डटा रहा लेकिन तभी मौत मर गया वो शहीद है, जो ताउन की बीमारी की वजह से मर जाए वो भी शहीद है, जो पेट की बीमारी की वजह से मर जाए वो भी शहीद है, और जो डूब कर मर जाए वो भी शहीद है। ये भी सारे जो लोग हैं ये भी शहादत के मतलब किसी ना किसी दर्जे में आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए पिछला जो बैकग्राउंड है, जो कि पिछली हदीस में हमने देखा कि वो मुसलसल अल्लाह के रास्ते में सारी उसने अमल किए हैं, अल्लाह के रास्ते में वो निकला हुआ है, हर मैटर में रूहानी तौर पर भी वो अल्लाह के रास्ते में चल रहा है, जिस्मानी तौर पर भी, माली तौर पर भी, अपने ठिकाने के तौर पर भी, हर लिहाज से वो अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है, और जहां पर ज़रूरत पड़ती है वो अल्लाह के लिए अपनी जान भी पेश करने के लिए रेडी है। तो ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो मैदान जंग में है, चाहे वो मैदान अमन की सूरत में आम हालात में है, वो अल्लाह के रास्ते पर निकले हुए हैं, अल्लाह के रास्ते पर उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। लिहाजा ऐसे लोगों की मौत जो है वो दूसरी वजूहात की वजह से भी है, तो फिर भी अल्लाह ताला उनको शहादत के दर्जात जो है वो अता फरमाएंगे। बहरहाल शहादत जो है वो उसकी भी बहुत सारी, अब हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी ऐसी शक्लें हो सकती हैं, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में निकल निकल कर ये सारा कुछ करेगा वो ये दर्जात का हकदार है यकीनन। और ये अल्लाह ताला का वादा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन रिवायात से हमें पता चलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शुमार रखे जो बराह रास्त, जो बिल वास्ता किसी ना किसी तौर पर अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं और कुछ ना कुछ अल्लाह के दीन की खिदमत जो है वो कर रहे हैं, चाहे किसी भी सूरत में हो। आमीन। बहरहाल वापस आते हैं आयत की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमम कसीरम वसा। जो हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, वो पाएगा ज़मीन में ठिकाने भी बहुत सारे वसी, और बहुत सारी कुशादगी भी पाएगा, बहुत सारी आसानियां भी पाएगा। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन, और जो निकले अपने घर से हिजरत करते हुए इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, फिर उसे पा लेती है मौत। ये वही जो इस हदीस को हमने देखा अभी, कि जो उनका तसलसल जो है वो अल्लाह के रास्ते में है, उनकी जिंदगी का तसलसल दर हकीकत अल्लाह के रास्ते का तसलसल है। तो ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, हिजरत करते हैं, वो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में, तो फिर उनको अगर जब मौत पा लेती है, फ़कद वका आजरुहु अलल्लाह, तो यकीनन वाक़ई होगा उनका उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, यानी अल्लाह के ज़िम्मे है कि वो उनको अब अजर दे उनकी उन कोशिश के ज़िम्मन बदले में जो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में की। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है, मेहरबान है। यकीनन अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाला और मेहरबान है। इस दुआ के साथ यहाँ पर हम आज का सबक जो है वो मुकम्मल करते हैं, ख़त्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने मामलात में रूहानी तौर पर हम सही मानों में हिजरत करें। जो हमारे बहुत सारे शैतान के रास्ते में बिछाए हुए जाल हैं, हम उन शैतानी रास्तों से अपने जहन को, अपने रूह को, अपने रूहानी जो मामलात हैं उनको हिजरत करके अल्लाह के रास्ते में लेकर आएँ। और प्रैक्टिकली भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जिस भी किस कंडीशन में हम किसी ना किसी तौर पर अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ काम जो है वो अंजाम देते रहें। और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल भी फरमाए और हमें इस्तात के साथ साथ दूसरों को भी इस बात को समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
جی اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی، خاص آسانیاں ہمیں عطا فرمائے۔ روزمرہ کے معمولات میں کچھ مسائل، کچھ مشکلات، کچھ پریشانیاں، کچھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے معاملات، کچھ ہماری اپنی فیملی کے معاملات، کچھ بچوں کے معاملات، جابز اور کاروبار، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو جو جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص آسانی عطا فرمائے۔ نیک اور جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں رزق دیا ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان رزق سے ہم دنیا تو بسر کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان رزق سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔